See, we are going to start the new chapter, and the name of the chapter is missing terms. Okay? The name of the chapter is missing term. Yes, before beginning further, 1 minute. So today we are going to discuss a very important topic. It is one of the most demanding topics, and it is a topic in which most of the students face problem. Most of the students face problem. कोई बहुत बड़ी बात नहीं. अब even I used to face problem when I was when I was preparing for different exams. I used to face problem in this topic also, because here the issue is, एक तो नंबर सिस्टम में we can do something, but here what is happening is, एक ट्रायंगल दे देंगे, ट्रायंगल में 3 नंबर. सी व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. सपोज व्हाट दे आर आस्किंग इज, देयर इज अ ट्रायंगल, one number will be written here, one number will be written here, one number will be written here, and one number will be written here. कुछ भी हो सकता है. You have to find the relation between these numbers, and on the basis of that आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा, या आपके पास क्वेश्चन ऐसा आएगा, एक सर्कल दे दिया, उस सर्किल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, देन अगेन दे डिवाइडेड इट लाइक दिस. यहाँ पे 2 नंबर्स होंगे, यहाँ पे इसको इरेज कर देंगे, यहाँ पे एक नंबर लिखा होगा, देन अगेन दे विल डिवाइड this like that. So different type of arrangements they make. So the first thing that we have to decide is, किसके बीच में रिलेशन निकालूं. मैं रिलेशन निकालूं किसके बीच में. रिलेशन तो मैं कुछ भी करके निकाल सकता हूं, बट रिलेशन निकालना किसके बीच में, दैट इज द फर्स्ट इरिटेंट ऑफ दिस टॉपिक. फाइन. तो करना क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करना है. what is the key to success, why when I can't solve, when this topic is so difficult, then why I am studying this. You are studying this because this topic is very important. How can I score marks in this topic? The key to success in this topic is, the key to success in this topic is again practice. नंबर सिस्टम हो गया, एल्जेब्राइक सीरीज में फिर भी आप लोग कर सकते हैं, if you are well, if you know the positions of the letters well. अब वैसा मत करना जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि you are confused about the position of Q, whether it is 16 or whether it is 17. अगर वाकई में मैंने उसे जानबूझ के 16 लिखा होता तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता, क्योंकि और कोई दूसरा लॉजिक ही नहीं मिल रहा था. अगर हमें पोजीशन नहीं पता होती, हम पोजीशन के बारे में कंफ्यूज होते, हम डायरेक्टली उसे 16 लिख देते, instead of writing it as 17, we were not able to solve the question, and that question was asked in stage 2. That question would have defined your success or failure. So don't be confused in those type of easier topics. Now let us move to this topic. Take up. So what is going to happen in such type of questions? A figure or a set of figure or an arrangement or on a matrix is given, each of which bears certain characters, be it numbers, letters, group, or combination of letters or numbers following a certain pattern. You have to find the pattern and you have to answer. Now this was the question about which I was telling you कि आपके पास क्या होगा आपको भी नहीं पता है. Try this. Sir, answer I get 216. 216. 216. 216. Basically what they have done. डिफरेंस का क्यूब है. डिफरेंस का क्यूब करते गए. 5 - 4 1 किया, 1 का क्यूब कर दिया 60, 1 का क्यूब हो गया 1. 7 - 4 3 किया 4, 4 का क्यूब हो गया 64. देन आई एम हैविंग 5 - 2 3, 3 का क्यूब हो गया 27. 8 - 2 is 6, 6 का क्यूब is 216. अब बेटा 6 का क्यूब 256 तो किसी को नहीं लगता. कोई ऐसा तो नहीं है क्लास में जिसको लगता है कि 6 का क्यूब 256 होना चाहिए. ऐसी छोटी छोटी गलतियां मत करना, है ना. छोटी छोटी गलतियां करोगे आपको ही हानिकारक, आपके लिए ही हानिकारक होगा. चलिए नेक्स्ट. सब 10. ऑप्शन 10. Very smart. Option number B, is it 10? Okay. जो डिफरेंस है वही बीच में लिखा है.
जो डिफरेंस है वो बीच में लिखा हुआ है भाई. 10 minus 4 is 6, 18 minus 10 is 8, and 18 minus 4 is 14. The difference is written in between. आगे बढ़िए. Sir, 26. Option number B. Option number B, 26. Yes, sir. Yes, sir. 26. B. Sir, 26. square from 4 square plus 2 Square का square. sum. 4 square plus 2 square is 20. 9 square plus 3 square is 90. 5 square plus 1 square is 26. आगे बढ़ो. चलो अब यहाँ आ जाओ. Sir, option number B, 50. Option number B, 50. Okay. Yes, sir. 50. Option number B, 50. 7 square plus 4. See, I'm not writing anything. I hope nothing is being required to write. 7 square Yes, plus sir. 4 is 53. Then I'm having 9 square plus 6 is 87. 7 square plus 1 is 50. So the correct answer will be 50. Next. This one. Sir, 37. Option number C. Yes, sir. 37. 37. Yes, sir. हो गया. Yes, sir. 35 plus 16 is 51. Yes, sir. 30 plus 30 plus 9 is 39. In the end, I will have 25 plus 12 is 37. So option number C is the correct answer. Sir, is it 3 into 2? Means What option number is B. it? What is it? I don't B know. option. No, sir, it is 3 into 2. It is 3 into 2. पक्का? हाँ सर. ठीक है. Yes, ठीक sir. है. 3 into 2. ठीक है, चलो मान लिया आपकी बात. सबसे पहले 57 को लिख दो, उसके बाद 83 को लिख दो. मतलब द फर्स्ट लेटर विल बी एट द एंड. तो ये 3 हो गया और जो सेकंड लेटर होगा विल बी एट द स्टार्ट. सो 3 into 2. So the correct answer B will be option number B, that is 3 into 2. Okay. Anybody who is not able to understand what is happening here? Anybody who is having any issue, any doubt regarding what is happening here? If yes, please ask. चलिए next. Sir, B option 4. Wait, I will ask Jeel. Jeel was very quick in answering previous questions. Sir, 4. Are you Jeel? Sir, 4. No, sir. तुम लोग अपना नाम कितनी जल्दी चेंज कर लेते हो? मैंने बोला I want to ask Jeel. Jeel, I am waiting for your answer, बेटा. Sir, I am finding the answer. हाँ, find करो. Yes, sir. Answer will be 4. Answer will be 4. Yes, sir. भाई बाकी जिनका आंसर आ गया आंसर बताते जाओ. Sir, 4 आ रहा है. 4 आ रहा है पक्का? कुछ और तो नहीं आ रहा? देख लो यार. भाई जी हाँ सर हो गया 4 आ हो रहा है गया. चलो आप ही बताओ कैसे किया. सर जो फर्स्ट लेटर है सर मतलब ऊपर के दो 5 और 6 उनको मल्टीप्लाई किया फिर 12 के साथ प्लस कर दिया 5 और और फिर 6 को मल्टीप्लाई किया और 12 के साथ प्लस कर दिया. 7 और 5 को मल्टीप्लाई किया 7 के साथ प्लस कर दिया. 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ प्लस कर दिया. ठीक है भाई. क्या हुआ बेटा जील? See, this is the problem. This is the problem. When the questions are easy, we all can answer it quickly. But when the questions become little twisted, we're not able to answer. You have to work on this. You have to work on this. कैसे करेंगे?
You are not alone to work here. I will be there to work here, work with you. एक बात और बता दूं आप, चलो इस क्वेश्चन का आंसर आया था, करिश्मा ने दिया आंसर 168. एनीबडी एल्स? करिश्मा एंड सुनय एंड परहैप्स श्रेय आल्सो, उन्होंने दिया होगा आंसर, मैंने सुना नहीं. तो ये 3 लोगों ने आंसर दिया है 168. व्हाट अबाउट अदर्स? सौरभ, अदिति, आशिका, परमार जी, व्हाट अबाउट यू? नहीं सर, नहीं हो रहा, ट्राई तो कर रहा हूँ. Right. Very good, very good. I am listening your voice for after some time. Answer is B or D? सर B 168. सर हाँ, बताओ okay. कैसे? नहीं नहीं नहीं, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ. तुमको बड़ी जल्दी है बेटा. सर मैं बताऊं, आप नहीं बताएंगे. चलो देखो यार, there is no point in waiting for this question. 5 plus 4 करो 9 मिला, 9 स्क्वायर करो 81 मिला, 81 minus 1 करो 80 मिल जाएगा. 8 plus 2 10 मिला, 10 स्क्वायर करो 100 मिला, 100 minus 1 99 मिलेगा. 6 plus 7 13 मिला, 13 स्क्वायर करो 169 मिलेगा. यहीं पे गलती हुई थी आपके दोस्त से. 169 नहीं आंसर है, 168 इज द आंसर. दैट इज व्हाई ये दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं. एंड सी द माइंड ऑफ द एग्जामिनर. व्हाट दे हैव डन इज 168 और 169 दोनों आपस में लिखा हुआ है. कभी गलती में देयर इज अ चांस दैट ए स्टूडेंट कैन मार्क द आंसर रॉन्ग. आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग. दोनों नंबर्स को ऐड इसको कुछ और भी तरीके से कर सकते हैं. बताइए कैसे? सर जैसे कि हमें 8 और 2 दिया है, तो सर उन दोनों का सम करेंगे तो हमें 10 मिला. अब 10 का एक +1 नंबर 11 होता है और -1 नंबर 9 होता है, तो 11 × 9 99. फिर 5 और 4 का सम 9 होता है, तो +1 नंबर 10 और -1 नंबर 8, तो 10 × 8 80. तो सिमिलरली 7 + 6 है. तो बेटा आप पता है क्या कर रहे हो? आप ये कर रहे हो a square minus 1 is equal to a plus 1 multiplied by a minus 1. हमने a square minus 1 किया, आपने a plus 1 multiplied by a minus 1 कर दिया, और कुछ नहीं किया आपने. ठीक है, चलो अच्छी बात है. ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक सोचो. मैं तो नहीं सोच पाऊंगा भाई, लेकिन आप लोग सोचो. यू गाइज आर मोस्ट वेलकम. कभी कोई बहुत अच्छा लॉजिक मिले तो मुझे भी बताना, मैं भी उसे नोट करके रखूंगा. चलो नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे आइए. रुक जाओ सर. ऑप्शन सी 123. ऑप्शन सी. ये बीच में आंसर किसने दिया? करिश्मा से पहले किसने आंसर दिया? सर मी साहिल. Sahil. Okay, Sahil. Very good. See, I want to listen answer from new students यार. मैं वही 4-5 लोगों की आवाज सुन के पक गया हूँ यार. I want to listen answer from new students. Very good, Sahil. Next question जो भी होगा you have to answer. हाँ. So it is 7 square plus 2, 9 square plus 3, 11 square plus 2. So the correct answer will be where it is 123. ठीक है, लेट अस मूव अहेड. चलिए. सर ऑप्शन नंबर बी 27. 27. सर 27. सर 27. सही है. ये सारे बच्चों का नाम चेंज करके साहिल कर देता हूँ. ठीक है. 3 क्यूब 3 स्क्वायर. चलो भाई आ जाओ. साहिल विल आंसर, नोबडी एल्स इज गोइंग टू आंसर. किसी और ने आंसर किया तो उसका नाम अगली क्लास से साहिल रहेगा. Very good. Very good. Very good. Sahil, Sir, is it option number C? Is it option number C? First of all, I hate. सर मेरा आ गया. सर चैट में लिख दो. हाँ लिख दो.
Sahil, I hate this word, is it? Be confident. C होगा या नहीं होगा? Sir, option number C. Option number C. What is the logic behind that? Sir, the horizontal numbers are to be multiplied and are to be added to the sum of the vertical numbers. तो बेटा उस केस में what is the answer you are getting? जरा देखो. Horizontal numbers are multiplied. So 13 into 2 is how much? Do you want to change your answer? No, sir. No, sir. 13 into 2 is how much? I'm verifying, sir. Okay, you are verifying. 13 into 2 is how much? Tell me. Sahil, what is the product sir. of 13 into 2? Sir, 26, I'm telling it. 26. 26 plus 7 into 2. What is 7 into No, sir, 2? 7 plus 2. 7 plus 2. Okay. 7 plus 2. Now see, your friend is, then how is the second box It satisfied? should be 7 into 2. Second case. रुक जा यार एक Sorry, sir. Sorry, sir. एक मिनट I रुक जाओ. made the mistake in the third one. Silence everyone. See, Sahil, it's not the question of making mistake. Sahil and everybody, it's not the question of making mistake. It's a general problem that Sahil was facing. See, Sahil ने क्या किया? मैं आपको बताता हूँ Sahil ने क्या किया. Sahil पहले बॉक्स के पास गया, पहली फिगर के पास गया. इन्होंने 6 into 4 किया, 24 मिला. 2 plus 2 किया, 28 कर दिया. 2 plus 2 28 हुआ, तो इन्होंने मतलब 2 plus 2 4 हुआ. 24 plus 4 is 28. He was very happy. Without checking the second term, without checking the second figure, he gave the answer as 35. This is where the mistake is being done. See, the options are deliberately framed. Sahil, Stuti, everyone and all the other 60 students who are present in the class, एक बात ध्यान रखना, कहीं पे अगर 2 into 2 लिखा हुआ है या 2 और 2 लिखा हुआ है, you have to, and the result is 4. So you can do both the operations. You can do plus also, you can do multiply also. So go to the second figure also and check whether it is 2 plus 2 or whether it is 2 into 2. Don't do the mistake that Sahil did. This is a very common mistake. I was waiting for someone to do this mistake. This is a very common mistake. Thank you, Sahil, for doing this mistake. You should not be sorry to yourself. Rather, I am thank you to you. I hope आप लोगों ने इस बात को समझा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ. यहाँ पे 2 और 2 था. एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर. यहाँ पे 2 और 2 था. रिजल्ट मुझे 4 मिल रहा था क्योंकि 24 plus 4 या 24 plus 2 into 2 is also equal to 28. 24 plus 2 is also equal to 28. So there was the confusion, my dear friend. That is why I went to the next figure. When I went to the next figure, I found it 56 plus 24. अगर मैं साहिल के लॉजिक से जाता तो 56 plus 10 that is equal to 66 होना चाहिए था यहाँ पे आंसर. एक और सिमिलर क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, जहाँ पे इसकी जगह 66 लिख देंगे. The question will be same. The idea will be same. I hope this thing is clear, right? Let us move to the next question. चलिए आइए. This question is open to all. Sorry. Option number C. Sorry. E. अच्छा. Yes, sir, it will be. Sir, answer is option number C, E. Yes, sir. C, E. ठीक है. So everybody is giving the answer as option number C. So what should I do? Moving in the clockwise direction, the difference is increased by 1. मतलब C और D के बीच Sir, में. but sir, clockwise, sir, हम लोग सर
हमने सी से स्टार्ट किया सर, इसलिए लॉजिक मिला सर। अगर हम सपोज एफ से, आई से या कोई भी लेटर से क्लॉकवाइज कहीं से स्टार्ट करो, कहीं से स्टार्ट करो, कोई सर, तो हर बात जगह इंक्रीज बाय 1 थोड़ी नहीं। होगा। आगे जाके डिक्रीज करेगा। आई से एम, एम से आर, आर से एक्स, एक्स से इससे पहले वाला एक्स से ई, ठीक है। now see, don't get confused. I tried to explain this in the last class also. There were many questions where I told that okay, not in your batch but in 9th class batch I explained this. मुझे लगा आप लोग को ये बात मालूम होगी. There were many questions where I told that if Z is taken as 26, so A was taken as 27. A was taken as 27, and at the same time I also took A as 1 also. The position of A can be taken as 27 as well as 1. वो जो पिछला क्वेश्चन था जो आपकी दोस्त ने पूछा था जहाँ पे डिफरेंस 11 का आ रहा था, वहां पे भी तो हमने यही काम किया है, ठीक है। सर ये लॉजिक कुछ समझ में नहीं आया सर, ये क्या किया इसमें? ये लॉजिक बेटा इन्होंने ये किया है, क्वेश्चन मार्क के बाद वाले लेटर पे जाओ जो कि सी है, सी से क्लॉकवाइज घूमते चले जाओ। सी और डी के बीच में देयर इज नो डिफरेंस, डी और ई एफ के बीच में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 लेटर, एफ और आई के बीच में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 लेटर्स, आई और एम के बीच में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 3 लेटर्स। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द consecutive letters is increasing by 1. This is what they have done. Okay? Yes sir, understood. चलो next. अब आएगा मुझे सर ऑप्शन नंबर बी 20। यार क्वेश्चन खत्म नहीं होता, आंसर आ जाता है, अच्छा लगता है। ऑप्शन नंबर बी 20। others, but she can be correct Yes, sir, also. option number B 20. She can be correct also. Both of them can be correct also. Both of them can be wrong also. Sir, option B20. Option number B20. Okay, option number B20. Option number B20. अरे यार, ठीक है. Option number B20. Everybody is saying option number B20. लगता है सारे के सारे गलत हैं। चलो देख लो भाई, सब बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर B20, तो मैं क्यों मना करूं? ऑप्शन नंबर B20. Option number B, it will be 20 only. The logic was 6 into 3 minus 4 into 2. 6 into 3 minus 4 into 2, 9 into 5 minus 5 into 3, 6 into 2 minus this is 6 into 5 minus 5 into 2. Whatever will be the value, that will be your answer. ठीक है, next. चलिए यहाँ पे आइए। सर ऑप्शन नंबर B2। Option number B2. Anybody else? Anybody else? चलो जब कोई नहीं बताएगा तो लेट मी आस्क योर फ्रेंड ओनली। हाँ बताइए, क्या बोल रहे हैं? सर 2 है आंसर, ऐसा बता रहे हैं। 2 है आंसर, क्यों है 2 भाई? सर हमें सम ऑफ द डिजिट दोनों के एक्सट्रीम्स के सम ऑफ द डिजिट सब्ट्रैक्ट करने हैं। एक्सट्रीम के सम ऑफ द डिजिट सब्ट्रैक्ट करने हैं। अच्छा, सो can you please elaborate? Can you please elaborate? हेलो, आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है। आ रही है। चलो ठीक है, देखो
by 9 plus 6 plus 3 is 9 plus 6 plus 3 is 18. 8 plus 4 plus 4 is 16. 18 minus 16 is 2. Similarly here also I will have 14 minus 12 which is equal to 2. So the correct answer of this question will be option number B, that is equal to 2. Next आ जाइए। इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें डिफरेंट फिगर्स मिलते हैं देखने के लिए। 70 सर बी ऑप्शन 70। बी ऑप्शन 70। हाँ जी परमार जी बताइए, कुछ बोल रहे हैं? सर इंटू 2 प्लस। अरे आंसर 2 नहीं पूछ रहा हूँ, लॉजिक पूछ रहा हूँ। अच्छा सर, ओके। हाँ सर लॉजिक ही तो मतलब बोलना सर, लॉजिक इंटू 2 नहीं प्लस पूछ रहा हूँ, आंसर पूछ रहा हूँ। ओके व्हाट इज द आंसर? सर 70 बी। ठीक है, इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2, कहाँ से इंटू 2 प्लस 2? यहाँ से इंटू 2 प्लस 2। 7 into 2 plus 2, 16 into 2 plus 2, 34 into 2 plus 2, which is equal to 70. लेकिन still I am not sure 70 into 2 plus 2 should be 142. 142 into 2 plus 2 should be equal to 286, जो कि है. So the correct answer of this question will be 70. Next. Excuse me, sir. Yes. सर 262। बताइए क्या बोल रहे हो आप? सर पिछले क्वेश्चन में मुझे और एक लॉजिक मिला था। बताएं। सर हम 2 plus 8 plus 6 करेंगे तो 16 आएगा। 2 plus 8 plus 6 किया तो 16 आया। हाँ जी। सर प्लस फिर 1 plus 4 plus 2 करेंगे तो 7 आएगा। सर वैसे अगर हम 3 plus 4 किया तो 3 plus 4 किया तो यहाँ भी 7 आया। तो यहाँ पे जब 7 है तो ढूंढ लो कौन सा नंबर है जिसमें 7 है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? इन्होंने जो बोला इसमें, इन्होंने क्या बोला? 8 plus 2 plus 6 में कहाँ 7 है? क्या 286 में कहाँ 7 हो रहा है? 286 में 1 नहीं हो रहा है बेटा। 286 में जो सम ऑफ द डिजिट्स आ रहे हैं वो 16 आ रहे हैं। 16। और यहाँ पे 286 के सामने वाला जो सर्कल है, यहाँ पे जो 16 है, 16 के सम ऑफ डिजिट 7 हो गया। यहाँ पे भी द सम ऑफ डिजिट्स इज 7। यहाँ पे द सम ऑफ डिजिट्स इज 7। यहाँ पे द सम ऑफ डिजिट्स इज 7। यहाँ पे द सम ऑफ डिजिट इज 7। So in your answer also the sum of digits should be 7. So your answer is 70. सही। 286 से 16 कैसे रिलेट किया समझ में नहीं आया। 2 plus 8 कितना होता है? 10। 10 plus 6 कितना होता है? 16। 1 plus 6 कितना हुआ? 7 सर। लेकिन 16 और 7 क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट 16 आ रहा है और उसका 7 आ रहा है तो ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर है, वापस मैंने 2 डिजिट नंबर आया, मैंने उसका सम निकाल लिया। 2 डिजिट नंबर आया, जो सम ऑफ डिजिट्स आया वो एक मेरा 2 डिजिट नंबर मिला। ठीक है, मैंने उसका वापस से सम निकाल लिया। सी I want to reach a logic. I want to reach to a logic. अगर 2 डिजिट नंबर जब अपन एडिशन करते हैं तो 1, अगर मेरा 3 डिजिट में एडिशन आता है, जैसे मान लो मैं तुमको बोलूं 19 प्लस से, आई मीन कैरी जब हम देते हैं तो हम यूनिट्स प्लेस को अपने पास रख लेते हैं, टेंस और 100 प्लेस को अपन कैरी दे देते हैं। यहाँ पे सेम काम किया, 286 आया, यहाँ पे 16 मिला मेरे को। 16 को मैंने 1 plus 6 करके 7 कर दिया। यहाँ पे मेरे को 16 मिला, यहाँ पे भी मैंने 1 plus 6 करके 7 कर दिया। हालांकि जो आपके दोस्त ने लॉजिक बोला था that was little bit different. What she was saying कि सर यहाँ पे जो सम ऑफ डिजिट्स आया है वो 16 आया है, यहाँ पे मेरे को 16 लिखा हुआ मिल रहा है, यहाँ पे जो सम ऑफ डिजिट्स आया है वो 7 आया है, यहाँ जो सम ऑफ डिजिट्स आया है वो 7 आया है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे सर 7 है, तो यहाँ पे ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका सम ऑफ डिजिट 7 हो।
So the answer will be option number B. You can go by this also if you want. You can add the two जो 16 आया 16 के digits को sum कर दो, so you will get 7. And इन दोनों में से कोई कुछ भी स्ट्राइक नहीं करता है तो जो जैसे किया है वैसे कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर तो बता दिया आपने, बता दिया, बाकियों ने नहीं बताया। 262 करना क्या है, डिजिट्स का डिफरेंस रख दो। 2 - 1 5 6 - 3 5 - 4 then 4 - 2 6 - 2 and 8 - 0 simply. Next. आ जाओ भाई। अब तक तो बड़े आसान आसान सवाल आ रहे थे, अब आ जाते हैं एनटीएससी के सवालों। मुझे लगता है आंसर आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा। इन क्वेश्चंस में हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, क्योंकि हम जो लॉजिक ढूंढते हैं वो लॉजिक आता ही नहीं। हाँ सर, वही हुआ। तो वही हुआ तो बेटा तुम ही आंसर दोगे। भाई पहले फिगर में हमने क्या किया, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद 240 से डिवाइड कर दिया। दूसरे कोई फिगर में हमने क्या किया, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और 240 से डिवाइड कर दिया। तीसरे फिगर में हमने क्या किया, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और जो रिजल्ट आया उसको 240 से डिवाइड कर दिया। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। सर तो ये 240 हमारे दिमाग में कैसे स्ट्राइक करेगा? बेटा 240 आपके दिमाग में ऐसे स्ट्राइक करेगा कि जब आपने सारे सर नंबर मल्टीप्लाई किया तो फिर डिवाइड 240 से वो होगा, वो करोगे तो 1 आएगा वैसे। अरे एक मिनट रुक जा भाई, मेरे को बोलने तो दे। जब आपने सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, आफ्टर दैट यू आर गेटिंग द रिजल्ट एज 1, ठीक है। हम कोई भी ऑपरेशन करें हमारे पास 1 तो आ नहीं रहा है। एक ऑपरेशन से आ रहा है 16 4 × 4 - 5 × 5 5 × 3, but that operation is failing in the next term, so that is not possible. मैंने जब सब कुछ ट्राई कर लिया उसके बाद मुझे यही मिला कि भाई जब मैंने सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो मुझे 240 मिला। अब जब मैं इस 240 से मुझे 1 लाना है, 240 से मुझे 1 लाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक ही काम कर सकता हूँ कि 240 को अगर मैं 240 से डिवाइड कर दूं तो मुझे 1 मिल जाएगा। बट स्टिल आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, स्टिल आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। इफ आई कैन डू द सेम थिंग इन द नेक्स्ट वन आल्सो, देन आई कैन बी श्योर। मैंने जब नेक्स्ट वाले में किया, फिर जब मैंने उसको 240 से डिवाइड किया तो मुझे आंसर मिला 7। नाउ आई कैन बी श्योर अबाउट इट, नाउ आई कैन बी लिटिल बिट श्योर अबाउट इट। अगले वाले में किया तो आंसर मिला अगले, नाउ आई कैन बी श्योर अबाउट इट। अगले वाले में जब सेम काम किया मुझे आंसर मिला 5, दैट इज आल्सो इन माय ऑप्शन, सो आई हैव मार्क्ड 5 एज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। एक्सक्यूज मी सर। यस सर पर 240 क्यों? क्योंकि देखो ना, 5 × 3 × 4 × 4 किया, मुझे रिजल्ट मिला 240। The product of 5 × 3 multiplied by 4 × 4 is 240. Now I have to reduce it to 1 by any manner. कैसे 1 से रिड्यूस कर सकता हूँ? जब 240 से डिवाइड किया तभी वो 1 में कन्वर्ट हो सकता है। बट स्टिल आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ये तो एक तरीका आया जिससे मैं मिडिल नंबर पे पहुंचा। आई हैव टू बी डबल श्योर अबाउट इट। So I went to the next figure. I used the same logic there. Now my logic is satisfied there. So I am sure, that is why I went to the next figure जिसको मैंने 1200 को 240 से डिवाइड किया, तो I got the answer as 5.
ठीक है, सो आई विल स्टॉप Yes. हियर। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता सोचना, अगली क्लास में फिर ट्राई करेंगे। अगली क्लास में कुछ मिसिंग नंबर से क्वेश्चन और डिस्कस करके आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, चलो फिर, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। सर अभी नेट में सर सॉल्व करने लगे ना बुक का। हाँ सॉल्व करो ना, हाँ बोलो बोलो। ओके सर। सर इस क्वेश्चन का एक और सॉल्यूशन शायद हो सकता है, लेकिन सर वो इतना मतलब बोलते ना सर रिलायंट नहीं है। ठीक है, सर, राइट इट मतलब- समवेयर, सौरभ राइट इट समवेयर